हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो ये हैं आज 4 कैंडिडेट्स अलग अलग क्लासेस के। तो समर वेकेशन की वजह से अब इनकी छुट्टियां, तो हम एक क्विज कंपटीशन यहाँ पे खेल लेंगे। तो ये हैं कैंडिडेट्स यहाँ पे, और हमने कुछ प्राइजेस भी रखे हैं यहाँ पे, चॉकलेट पेन वगैरह, और कुछ यहाँ पे फूल वूल लाए हैं। तो इनके ये जो है, ये पहले अपना इंट्रोडक्शन देंगे। तो आप अपना नाम बताइए और क्लास। I am Farin Tariq. I am class nursery. वेरी गुड। योर My नेम? name is Fardhan Tariq. I am studying in class 3rd. वेरी गुड। My योर? name is Mohammad Sabit Ittu. I study in first B class. वेरी गुड, My name is Mohammad Saqib Ittu. I study in third class. वेरी गुड। सो लेट्स कम टू द क्विज। तो पहले हम ये जो यहाँ पे प्राइजेस वगैरह हैं, ये देखिए आप। यहाँ पे कुछ चॉकलेट्स पेन वेन हैं। ये रैंक के हिसाब है, जो जिसकी जैसे रैंक आएगी वैसे प्राइज मिलेगा। तो यहाँ पे हम इस पे पॉइंट्स लिखेंगे। तो ये थोड़ा सेक्रेट रहेगा, मेरे पास ही रहेगा, और कैमरामैन से मैं गुजारिश करूँगा तो वो अच्छे अच्छे शॉट्स लेगा। और ये है यहाँ पे मेरी सीट। दिस क्विज इज स्पॉन्सर्ड बाय हॉटलाइट एजुकेशन इंस्टीट्यूट पालू, येरपुरा, कुलगाम। जब मैं आप सबसे मैं पहले आपको थोड़े इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ कि कैसे क्विज खेलनी है। तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, उसके ऑप्शंस बोलूँगा मैं। तो एक उसके लिए 15 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स रख लेता हूँ मैं। 20 सेकेंड्स के बाद ऐसी बीप बजेगी तो आपका क्वेश्चन जो वहीं पे पास ऑन होगा, ठीक है। अगर जवाब नहीं आया 20 सेकेंड्स तक तो वो फिर पास ऑन होगा, ठीक है। अगर आप दे भी सकते हो जवाब, अगर वो गलत होगा तब पास ऑन होगा, ठीक है। अगर सही होगा तब वहीं पे लॉक होगा, तो वो क्वेश्चन वहीं पे रहेगा। तो बीप ऐसे बजेगी, बस खत्म क्वेश्चन ऐसे। तो लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 1 with the what does caterpillar turns into? Butterfly, honeybee, housefly, or mosquito? You have 15 seconds. Repeat question. I will repeat the question. What does caterpillar turns into? Butterfly, honeybee, housefly, or mosquito? जो caterpillar है उसको क्या बनता है? अब मुझे समझ आ गया, butterfly. Butterfly. Are you sure? You wanna lock the question? Lock the question? Okay, this is the right answer. Then the 10 points credit to Saqib Betu. So question number 2 goes to Sabit. Just tell me, what do you call a baby dog? Cat, puppy, fish or lamb? जो एक बेबी डॉग होता है, एक बेबी कुत्ते का जो बच्चा होता है, उसको क्या बोलते हो आप? आप उसको कैट बोलते हो, पपी बोलते हो, फिश बोलते हो कि लैम बोलते हो? Puppy. पपी। आर यू श्योर? Yes. You wanna lock the question? Yes. Okay, fine. You are the right. Is the right answer. 10 points credited to the Sabit Arshiditu. So question number 3 goes to Fardhan Tariq. Just tell me what is this stage of garden called? Vegetables, fruits, dry fruits, or plants? Jo, I will repeat the question in Hindi also, Urdu also. What is the stage of garden called? जो अगर हम गार्डन के बारे में हम पढ़ेंगे, उसको क्या बोलते हो आप? उसको वेजिटेबल्स बोलते हो आप, फ्रूट्स बोलते हो, ड्राई फ्रूट्स बोलते हो, कि प्लांट्स बोलते हो? Plants. Are you sure? You want to log the question? Okay, done. That's the right answer. 10 points credited to Fardhan. So let's come to the another question. Which planet is closest to Earth? सबसे नजदीक, सिर्फ नजदीक planet कुछ Earth's? Mercury, Venus, Saturn कि Jupiter? Jupiter. Jupiter? You want to log the question? You want to log the question? You are the wrong. You are the wrong. Then a question pass on. So question pass on to the Saqib. Closest. Closest planet to the Earth. Mercury, Venus, Saturn और Jupiter. इन चारों में से सबसे closest कौन है? Closest मतलब बाहर. सबसे नजदीक, हाँ. नजदीक. Mercury. Mercury? Are you sure? Yes. You want to log the question? Wrong answer. Question pass on. Closest planet. Venus. Are you sure? You want to log the question? Right answer. 10 points credited. Minus points goes to Saqib and Farhin. This was a bonus question. So let's come to the Saqib again. Is the sun a planet or star? The sun is a star. Star, are you sure? You want to log the question?
Okay, done. That's the right answer. 10 points credit. Let's move on to the Sabit Arshidittu. What is the planet nearest to the sun? Venus, Earth, Mercury or Mars? Nearest means सबसे नजदीक कौन है सन के? वेनस है, अर्थ है, मरकरी है कि मार्स है? इन चारों में से आपको बताना है. Mercury. Are you sure? You want to log the question? Oh, that's the right answer. 10 points credited. Let's move on. Fardan. How many teeth does the adult have? एक बड़े आदमी को, जो एक बड़ा आदमी होता है, एक मैच्योर आदमी होता है, उसके कितने दांत होते हैं? 28, 32, 38 और 50? 32. Are you sure? You want to log the question? Yes. Okay, done. That's the right answer. 10 points credited. What comes after 4? What comes after 4? 4 के बाद क्या आता है? 5. 3 आता है, 5 आता है, 1 आता है कि 6 आता है? 5. 5. Are you sure? Lock? Okay, done. That is the right answer. 10 points credited to Farheen. Another question to the Saqib. Name the upper layer of the earth. सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है जमीन की, अर्थ की, वो कौन सी है? वो क्रस्ट है, कोर है या मेंटल है? क्वेश्चन समझो. क्वेश्चन फिर से आप समझो. आपके पास 20 सेकंड है. सबसे ऊपर वाली जो होती है लेयर, सबसे ऊपर वाली परत, सबसे ऊपर वाली हिस्सा जो होता है जमीन का, उसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं, कोर बोलते हैं कि मेंटल बोलते हैं? फर्स्ट वन. फर्स्ट वन. मुझे आंसर बोलो ना. क्रस्ट बोलते हैं, कोर बोलते हैं कि मेंटल बोलते हैं? इन तीनों में से. क्रस्ट. क्रस्ट. आर यू श्योर? यू हैव 1 सेकंड. श्योर? यू वांट लॉक? ओके, डन. बाल बच गए आप. एक क्वेश्चन टू साबित. साबित, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 50 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस? बॉइलिंग पॉइंट जो होता है जिसपे पानी उबलता है, किस डिग्री पे वो उबलता है? वो 50 डिग्री है, 80 डिग्री है, 10 डिग्री है कि 100 डिग्री सेल्सियस है? 100 डिग्री. आर यू श्योर? लॉक? ओके, डन. अब आपने सही, इसका जवाब है सही है. 10 पॉइंट्स क्रेडिट है. एक क्वेश्चन यहाँ पे फरदान तारिक. तो आप मुझे बोलिए कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो इसने बोला. अब आप बोले ये कि मेल्टिंग पॉइंट जो है आइस का, वो क्या है? वो 0 डिग्री है, वो 6 डिग्री है, -6 डिग्री है कि 20 डिग्री है कि -100 डिग्री है? जो आइस है, जो बर्फ है, वो किस डिग्री पे मेल्ट होता है? 0 डिग्री पे होता है मेल्ट, -6 डिग्री पे होता है मेल्ट, 20 डिग्री सेल्सियस पे होता है मेल्ट, या -100 डिग्री पे? 20. श्योर? यू वांट टू लॉक द क्वेश्चन? You have 15 seconds to think. Are you sure? You want to log the question or pass on? Shall I pass on? Log. Sure, that's the wrong answer. Let's pass on the question to the Farheen. अब मुझे बोलिए कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है उसका, बर्फ का? 0 डिग्री है, -6 डिग्री है, 20 डिग्री है कि 100 डिग्री सेल्सियस? 100 डिग्री सेल्सियस, -100 डिग्री. दैट्स द रॉन्ग आंसर. ये नर्सरी में है तो इसका लेवल का ये क्वेश्चन नहीं है, तो इसको माइनस नहीं करेंगे हम, लेकिन पास ऑन करेंगे जरूर साबित के पास, जो कि. तो आप मुझे बोलिए कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या है? 0 डिग्री, -6 डिग्री, 20 डिग्री और -100 डिग्री? यू हैव 15 सेकेंड्स. -100 डिग्री. -100 डिग्री. आर यू श्योर? यू वांट टू लॉक? सो ऑप्शन फिर से आप सुनोगे. आपके पास टाइम ही नहीं बचा, तो आप क्या ऑप्शन सुनोगे? आपके पास रह गए 5 सेकंड. 0 डिग्री, -6 डिग्री, 20 डिग्री और -100? 20 डिग्री. दैट्स द रॉन्ग आंसर अगेन. सो विल पास ऑन द क्वेश्चन ब्रीफ. सो साबित, नाउ वी विल कैंसिल दिस क्वेश्चन हियर, क्योंकि अब वहां खाली एक ऑप्शन रह गया है, हमें पता है वही जवाब है. दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस. बाकी सब इन्होंने बोला, तो 0 डिग्री सेल्सियस का आंसर है. सब के माइनस हो जाएंगे, फारहीन के बगैर, जो कि नर्सरी स्टैंडर्ड में है.
जो आइस होता है वो 0 डिग्री पे मेल्ट होता है, ठीक है। ठीक है, जो आइस है वो 0 डिग्री पे मेल्ट होता है, ठीक है, ये याद रखना अगली बार। तो अब हम फिर से आएंगे, ये बोनस क्वेश्चन था इनके लिए। तो फरदान का क्वेश्चन था तो इसको निकला नहीं, तो बोनस पॉइंट मिला था इनके लिए, लेकिन इनको भी नहीं निकला। तो अब हम आते हैं यहाँ पे फरहीन के पास। आप मुझे बता दीजिए कि आफ्टर थर्सडे कम्स व्हाट डे। थर्सडे के बाद कौन सा डे आता है? फ्राइडे आता है, संडे आता है, सैटरडे आता है कि मंडे आता है? फिर से क्वेश्चन सुनिए। आफ्टर थर्सडे कम्स व्हाट डे। थर्सडे के बाद, थर्सडे के बाद कौन सा दिन आता है? थर्सडे बाद कुछ दोस्त फ्राइडे, संडे, सैटरडे की मंडे? फ्राइडे। फ्राइडे इसने बोला, लेकिन इसने थोड़ा ओवर टाइम में बोला, तो फिर भी इसका हम आंसर ले लेते हैं। सही है, थोड़ा लेट हो गए, तो ये सही आंसर है। फ्राइडे इज द राइट आंसर। 10 पॉइंट्स क्रेडिटेड। लेट्स कम टू द अनदर क्वेश्चन। विच इज द लार्जेस्ट एक्वेटिक एनिमल? लार्जेस्ट एक्वेटिक एनिमल कौन है? डॉल्फिन, स्टारफिश, क्रोकोडाइल और ब्लू व्हेल? एक्वेटिक मतलब? एक्वेटिक जो पानी में रहता है, सबसे बड़ा कौन है उनमें से? बिलीव। ब्लू व्हेल। आर यू श्योर यू वांट टू लॉक द क्वेश्चन? ओके, दैट्स द राइट आंसर। अच्छा, इसकी के साथ मुझे ये बताओ कि ब्लू व्हेल जो है वो मैमल है कि मैमल है या नहीं? मैमल है कि वो अपने बच्चों को दूध देती है कि नहीं ब्लू व्हेल? वो मैमल है। मतलब मैमल किसको कहते हैं? मैमल जो अपने बच्चों को दूध नहीं देती। दूध नहीं देती? दूध देती है। आपको पता ही नहीं था, ऐसे ही बोला। चलो ठीक है, सही है फिर भी। वेरी गुड, 10 पॉइंट्स क्रेडिटेड। लेट्स कम टू अनदर क्वेश्चन। साबित, व्हाट डू यू call the animal that eats both plants and animals? Herbivorous, omnivorous, carnivorous कि none of above? None of these. जो जानवर एनिमल्स को भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं, मतलब मीट भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हर्बिवोर्स, ओमनिवोर्स या कार्निवोर्स? कि कोई नहीं इनमें से? इधर देखिए, कार्निवोर्स। आर यू श्योर? लॉक? दैट इज रॉन्ग आंसर। क्वेश्चन पास ऑन। फरदान फिर से रिपीट कर। ओमनिवोर्स। आर यू श्योर? लॉक? ओके, दैट इज द राइट answer. 10 points credited and 10 points minus to the Sabit. Let's come to the another question. Can you hear anything in space? Yes or no? बस इतना बोलना। जो स्पेस में आप कुछ सुन पाओगे वहां पे, जैसे कि हम मून पे जाते हैं, एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं वो मून पे जाते हैं या किसी और प्लेनेट पे जाते हैं, स्पेस में जाते हैं ऊपर, तो वहां पे वो कुछ सुनते हैं? No. नहीं सुनते? आर यू श्योर? हाँ, लॉक? ओके, दैट इज द राइट आंसर। 10 points credited. Let's come to the another question. Bamboo a grass or branch? Bamboo क्या है? बैम्बू ग्रास और ब्रांच है। वो ब्रांच है कि वो ग्रास है? बोलो क्या है? ब्रांच। ब्रांच। आर यू श्योर? लॉक? दैट इज द रॉन्ग आंसर। अब इसमें एक ही बचा, तो ये भी बोनस के तौर पे आगे नहीं जाएगा, इसको यही पे एंड करते हैं। बैम्बू जो है वो ग्रास है, ठीक है, वो ग्रास की तरह उगता है, ट्रीज के ब्रांच होते हैं, सॉरी, ठीक है। तो अगली बार याद रखना, जो बैम्बू है वो क्या है? वो ग्रास है, ठीक है। ओके, गुड। साबित, हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन अ ट्रायंगल? 3, 1, 5, 8। ट्रायंगल पता है कैसे होता है? ट्रायंगल त्रिकोण। अब मुझे एक बात बताओ, उसके कितने साइड्स होते हैं? 3 होते हैं, 1 होता है, 5 होता है कि 8 होता है? उसके कितने वो साइड्स होते हैं? 3, 1, 5, 4। 4 ट्रायंगल। आर यू श्योर? हाँ, 4। आर यू श्योर? लॉक? टाइम खत्म होने वाला है। लॉक? ओके, पास ऑन। रॉन्ग आंसर, पास ऑन। 3। आर यू श्योर? लॉक? हाँ, ठीक है, योर आंसर इज राइट। अपना क्वेश्चन है
कि आप मुझे बताओ विच मंथ ऑफ द ईयर हैज द लीस्ट नंबर ऑफ डेज। सबसे कम दिन किस मंथ के होते हैं। ठीक है, अब इसके ऑप्शन है दिसंबर, मई, अगस्त, फरवरी। कितने होते हैं? 30। ये तो आपने, चलो आपको तो 10 पॉइंट्स क्रेडिट हो गए, आपने बोला फरवरी। अब ये मुझे बताओ कि कितने डेज होते हैं। चलो ठीक है, अब ये आगे मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपको जिसकी भी किस्मत में होगा। चलो अनदर क्वेश्चन फॉर हिन, हाउ मेनी फिंगर्स डू यू हैव इन वन हैंड। हाँ, 3, 2, 6 के 5। 5 श्योर, लॉक। ओके, गुड, राइट आंसर। विच एनिमल इज कॉल्ड द किंग ऑफ जंगल। टाइगर, वुल्फ, लायन, बियर। किंग ऑफ जंगल किसको बोलते हैं? टाइगर, वुल्फ, लायन और बेयर। आर यू श्योर? यू वांना लॉक? You wanna lock? Okay, that's the right answer. Sabit. Which festival is known as the festival of colors? होली, ईद, दिवाली के दशहरा। फेस्टिवल ऑफ कलर्स, जिसमें रंग डालते हैं आपस में, कौन सा है? होली है, ईद है, दिवाली है कि दशहरा है? होली। आर यू श्योर? लॉक। ओके, गुड, दैट इज राइट आंसर। क्वेश्चन टू द फरदान, हाउ मेनी डेज देयर आर इन ए मंथ ऑफ ए फरवरी इन ए लीप ईयर। लीप ईयर जो होता है उसमें जो फरवरी का मंथ होता है उसमें कितने दिन होते हैं? 28, 31, 30, 29। 31। आर यू श्योर? यू वांना लॉक? लॉक। दैट इज द रॉन्ग आंसर। पास ऑन टू द क्वेश्चन एज अ बोनस पॉइंट। फरहीन, पता है आपको? आपको नहीं पता होगा, ये बहुत थोड़ा टफ क्वेश्चन है। आप बताएं, जो लीप ईयर होता है उसमें जो फरवरी का मंथ होता है, मतलब लीप ईयर, उसमें कितने दिन होते हैं? 31 आते हैं, 28 आते हैं, 30 आते हैं कि 29? 31। आर यू श्योर? यू वांना लॉक? पास ऑन क्वेश्चन। 29 श्योर? यू वांना लॉक? लॉक। गुड, दैट इज द राइट आंसर। फरहीन, आप मुझे बोलिए, व्हाट डू यू ड्रिंक दैट कम्स फ्रॉम ए काउ। मिल्क, वाटर, जूस। जो हम काउ से लेते हैं वो दूध लेते हैं, हम मिल्क लेते हैं, हम वाटर लेते हैं कि जूस लेते हैं वहां से? काउ, गाय से जो हम लेते हैं, वो जो आप पीते हो वो क्या होता है? दूध होता है, वाटर होता है कि जूस होता है? पास ऑन क्वेश्चन। दूध इंग्लिश में क्या बोलते हैं? श्योर? लॉक। गुड। फिर से आपको क्वेश्चन है, वो आपको अभी बोनस का वो था क्वेश्चन। अब आप अपना क्वेश्चन सुन लीजिए कि जो अभी तो आपने बोला फेस्टिवल ऑफ, जो आपने क्या बोला, कलर्स। अब मैंने फेस्टिवल ऑफ लाइट किसको बोलते हैं? दिवाली, ईद, दशहरा के क्रिसमस? दिवाली। आर यू श्योर? लॉक। ओके, गुड, दैट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन साबित, अब मुझे बोलो कि जो फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियंस होता है, क्रिश्चियंस का फेस्टिवल कौन होता है? दिवाली होता है, क्रिसमस होता है, दशहरा होता है कि वो होली होती है? क्रिश्चियन का जो फेस्टिवल होता है, मतलब जो उनका मतलब बड़ा दिन होता है, वो कौन होता है? क्रिसमस होता है, ईद होती है, मतलब दशहरा होता है, दिवाली होता है, क्या होता है? रॉन्ग आंसर। क्वेश्चन पास ऑन। श्योर? दैट इज द राइट आंसर। अब मुझे आप बोलिए, फिर से आपको बोनस क्वेश्चन था अभी, आप मुझे अपना क्वेश्चन बोलिए कि व्हाट इज द टॉप कलर इन ए रेनबो। जो रेनबो का सबसे टॉप कलर होता है वो कौन सा होता है? ग्रीन, ब्लू, पर्पल और रेड? Sure, you wanna lock? Yeah. That's the wrong answer. Let's pass on the question. One sir, अब आप बोलिए इसका आंसर। क्वेश्चन फिर से बोलो कि आपने सुना। क्या? जो रेनबो जो होती है उसका सबसे टॉप मोस्ट कलर कौन होता है? रेड। उसने ऑप्शन के बगैर ही बोला, जैसे आपके लिए सेम है। चलो फिर भी गुड, आपने भी कोशिश की। तो इसको हम 10 के बदले 20 दे देते हैं। तो अब आपको अपना क्वेश्चन है, आप मुझे बोलिए कि व्हेन
इज इट ए टाइम फॉर बेड? जब हम सोने जाते हैं तो वो कौन सा टाइम होता है? जब हम सोने जाते हैं वो कौन सा टाइम होता है? डे टाइम होता है, नाइट टाइम होता है, मॉर्निंग होती है कि इवनिंग होती है? मॉर्निंग? आर यू श्योर यू वांट लॉक? दैट इज रॉन्ग. लेट्स पास ऑन टू क्वेश्चन. Repeat question. द क्वेश्चन इज व्हेन इज इट टाइम फॉर बेड? सोने का टाइम कब होता है? डे टाइम, नाइट टाइम, मॉर्निंग और इवनिंग? Day. Night time. नाइट टाइम. श्योर लॉक? दैट्स द राइट आंसर. अब आप क्वेश्चन सुन लीजिए. इन विच डायरेक्शन डज द सन राइजेस? ठीक है. वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और ईस्ट? East. वेरी गुड, दैट इज द राइट आंसर. 10 पॉइंट्स क्रेडिटेड. तो मैं जज से रिक्वेस्ट कर रहा हूं तो वो इसको 10 पॉइंट क्रेडिट करे. तो हमारे यहाँ पे कुछ गेस्ट्स भी हैं, क्यों वो बाद में कैमरा में आएंगे. एक ही गेस्ट आया है तो वो इनको इनामात देगा लास्ट में. तो अब हमें और एक क्वेश्चन है यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 24 है जो कि साबित इसका आंसर बोलेगा. हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन 1000? 5 4 3 2. 1000 जो होता है मीन्स के 1000 उसमें कितने जीरोज होते हैं? क्या ऑप्शन? ऑप्शन है आपका 5 4 3 2. क्या? 3. दैट इज द राइट आंसर. अब मुझे आप बोलिए फरदान, आपके लिए क्वेश्चन है. हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन ए 1 ईयर? एक साल में कितने वीक्स होते हैं? 48, 52, 55, 50. सो आप मुझे बोले कि फिर से क्वेश्चन सुनो. हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन 1 ईयर? एक साल में कितने वीक्स होते हैं? 48, 52, 55 की 50? 52. दैट इज द राइट आंसर. गुड. हाउ मेनी बोन्स डज एन एडल्ट ह्यूमन हैव? एक जो बड़ा इंसान होता है उसमें कितने हड्डियां होती है? बोन्स को तमें आसान. ठीक है. और 206, 200, 220, 2020 मतलब 220. ठीक है. 210 कितने होते हैं? 206. 206. देखो कितनी छोटी है, इसको निकल गया यार. दैट्स राइट आंसर. गुड. This quiz was sponsored by Hotelight Education Institute, Palu, Yerpara, Kulgam. We have a guest from the school, so I requested him please come forward and award the students with their ranks. Thank you. अस्सलाम वालेकुम. आज हमने थोड़ा सा छोटा मोटा सा क्विज कंपटीशन किया था और हम ये कोई प्लानड कंपटीशन तो नहीं था, लेकिन आज हम इनको इनामात देने जा रहे हैं. तो इनामात तो थोड़े छोटे हैं, लेकिन इनको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और इनको थोड़ा सस्पिशियस रखने के लिए मैंने क्विज कंपटीशन किया और हम इनामात देने जा रहे हैं. इस कंपटीशन में, क्विज कंपटीशन में जो थर्ड आया है, द थर्ड प्राइज अचीवर इज सेकंड प्राइज अचीवर है. उसका नाम है साबित अरशीद. साबित अरशीद, आप इधर आए और अपना इनाम दीजिए. इस क्विज कंपटीशन का जो फर्स्ट प्राइज अचीवर है उसका नाम है फरदान तारिक. फर्स्ट प्राइज अचीवर. इस क्विज कंपटीशन के हमारे 2 एस्पिरेंट ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, और जो दूसरा एस्पिरेंट है जिसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है उसका नाम है, मैं बुलाने जा रहा हूं, साकिब
Let's go.